Hello everyone, this is Soumya. Welcome to my channel. Today I want to share with you some multiple choice questions and answers related to traditional media, which is popularly also known as the folk media. Okay, now first I want to say about what is traditional media. Then traditional media based upon the people's performance. Traditional media लोगों के जो परफॉर्मेंस के ऊपर आधारित होता है। ये बहुत चीप और मीडियम होता है, ठीक है, और लोगों को ये इसके थ्रू समझाना बहुत इजी होता है। तो ट्रेडिशनल मीडिया में नॉर्मली इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच एम्प्लॉयज vocal, verbal, musical and visual folk art forms transmitted to a society or group of societies from one generation to another. ट्रेडिशनल मीडिया एक कम्युनिकेशन का फॉर्म होता है जहां हम म्यूजिक, फोक आर्ट फॉर्म्स और लोक कथा ये सारी के सारी यूज करते हैं ट्रांसमिट द मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए हम एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी को, लोगों से दूसरे लोगों तक और जेनरेशन टू जेनरेशन और एक जेनरेशन से अदर जेनरेशन तक ये सारे जो मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए हम ट्रेडिशनल मीडिया को भी यूज करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मीडिया हमारा कल्चर को भी स्प्रेड करता है। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया, जैसे आपका वॉल पेंटिंग्स, folk drama, folk songs, folk music, storytelling, folk theaters, puppet show, motifs, like all these things. Okay, so let's start now. The multiple choice questions relates to it because through the multiple choice question, I want to briefly describe something about the traditional media. The first question is, this is the puppet show of Odisha. There are four options: Katputli, Sakhi Kundhei, Putla Nacha, Bomalattam. Okay, then I already have red mark to the answer Sakhi Kundhei. Sakhi Kundhei is the puppet show of Odisha, but the other options, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कठपुतली इट बिलोंग्स टू राजस्थान और पुतला नाचा इट बिलोंग्स टू असम. प्लीज नोट डाउन, कठपुतली फ्रॉम राजस्थान, पुतला नाच फ्रॉम असम and Bomalattam is the folk performance of Tamil Nadu. Please remember. Okay. The next question is, which is not a type of puppet show? Okay. Nautanki is the answer here, but you also know that आपको ये भी जानना पड़ेगा कि पपेट शो का जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं. ग्लोव पपेट, स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट, रॉड पपेट, ये सारे के सारे पपेट शो का डिफरेंट टाइप्स ऑफ है. नौटंकी एक पपेट शो नहीं है, ठीक है. नौटंकी क्या है? नौटंकी इज ए फॉर्म ऑफ फोक आर्ट्स एंजॉयिंग द मिक्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. ओके, नौटंकी एक फोक आर्ट फॉर्म है जहां आप म्यूजिक और डांस दोनों को एक साथ पाओगे, ठीक है. इट कंबाइंस द म्यूजिक एंड डांस फॉर्म एंड it is very popular in northern India. Okay, it was also the popular form of entertainment before the advent of the movies. Okay, the next question, from which language the word puppet comes from? Okay, the word here already red mark, French and Latin, ठीक है. the puppet का मतलब होता है आपका डॉल, ठीक है. the French वर्ड पॉपी एंड लैटिन वर्ड पुपा, ये दोनों से पॉपेट वर्ड आया है और उसका मतलब है डॉल, ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच वन इज द फोक परफॉर्मेंस ऑफ महाराष्ट्र? तामसा इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ Marathi traveling theater. Okay, so it is the folk performance of Maharashtra. Tamsa is the answer, and through Tamsa, through the traveling theater, through singing and dancing, the performers, the theater groups perform the act. Okay, so please remember, Tamsa is the traditional form of Marathi traveling theater. Okay.
Next question is, Ravan Chaya is a form of shadow puppet show of which state? रावण छाया एक शैडो पपेट शो कौन सी स्टेट का है? ठीक है, ये ओडिशा का ही एक शैडो पपेट है। ये सॉरी ओडिशा का ही ये फोक आर्ट फॉर्म है और ये बहुत पॉपुलर भी है ओडिशा में। ठीक है, देन यक्षगान इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? यक्षगान is a folk art form. It is the traditional theatre developed in different areas of Karnataka. So our answer is Karnataka. Then which one is the folk theatre in Gujarat? Then Bhabai is the folk theatre in Gujarat. Please remember. Then the next question is, Madhubani painting is related to which state? मधुबनी पेंटिंग, ओके, इसका नाम मधुबनी, इसका ये जो जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम ही मधुबनी है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहां से ये शुरू हुआ है। इसका ओरिजिन वो ये जो आर्ट फॉर्म है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट हुआ है। सो इसका नाम मधुबनी पेंटिंग है। इसका आंसर बिहार है। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से ये पेंटिंग का ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपका आंसर होता है देन बिहार। देन व्हिच ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस वाज एसोसिएटेड विथ भक्ति मूवमेंट? कीर्तन इज आवर आंसर। भक्ति मूवमेंट में आपको ये अगर आपने पढ़ा होगा आपको ये भी याद होगा, संत कबीर, तुलसीदास, ये सारे ये भक्ति मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। वो थ्रू द कीर्तन वो उसी टाइम में जो भक्ति मूवमेंट का जो स्प्रेड कर रहे थे थ्रू द कीर्तन परफॉर्मेंस। ओके, the next question is, which one is the popular street theatre of Tamil Nadu? Therukuttu, already red marked answer. Therukuttu is the folk art form of Tamil Nadu, where artists play songs with dance and music in storytelling. Okay, थेरुकुटू जो आर्ट परफॉर्मेंस है उसमें आर्टिस्ट क्या करते हैं ना, वो जो सॉन्ग्स और डांस के थ्रू वो एक्ट प्ले करते हैं, वो स्टोरी टेलिंग करते हैं सॉन्ग्स और डांस के थ्रू। ठीक है, देन पवाड़ा इज द फोक बलाड फॉर्म ऑफ व्हिच स्टेट? पवाड़ा एक फोक बलाड फॉर्म है मराठा का, महाराष्ट्र का। ठीक है, वो महाराष्ट्र में वो डांस फॉर्म डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी। जो ग्रेट मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी थे उनके बारे में, उनके वो जीवन में जो जितना अच्छे काम किए हैं उनका जो गुणगान करके यहाँ पे जो पवाड़ा में वो फोक बलाड फॉर्म में इसे शो किया जाता है, उनके लाइफ के डिफरेंट इवेंट को। ठीक है, देन गरबा इज द फोक म्यूजिक ऑफ व्हिच स्टेट? ओके, गरबा इज द फोक म्यूजिक ऑफ गुजरात। इट वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया। आपने भी बहुत सारे फिल्म और सीरियल में इसे देखा भी होगा। देन गरबा इज परफॉर्मिंग at the time of Navaratri to pray to the god of Shakti. गरबा आपको शक्ति को पूजा करने के लिए और इसके वो नवरात्रि में ये गरबा खेला जाता है। ठीक है, और very famous है ये जो डांस फॉर्म। देन कजरी फोक म्यूजिक इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? द कजरी फोक म्यूजिक relates to the state Uttar Pradesh. ठीक है, then match the following in the question. Please match the following. I already had matched here. Then I want to describe it. Then Bhilupattu. Bhilupattu is the folk art form of Tamil Nadu. Okay. Then Bhiladichampattu. It is the folk art form of Kerala. Then Burakatha. It is the folk art form of Andhra Pradesh. Jugni is the folk art form of Punjab. Please remember Bhilupattu,
in Tamil Nadu, Bhiladi Champatu, it in Kerala, then Burakatha in Andhra Pradesh, then Jugni in Punjab. Okay, the next question is, it is also match the following. Then दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके जो नेट में यूजीसी नेट में आते हैं, आपका जो यूपीएससी में एसएससी इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना, यहाँ पे आते हैं। आप मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो एग्जाम भी देते हैं वो वहां पे भी आप ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग, देयर आर 4 ऑप्शंस, घूमर, लावनी, लौड़ी खेड़ा, चांगलो, and the other options are Maharashtra, Rajasthan, Nagaland, Odisha. Okay, then घूमर एक बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान। आपने इसे पद्मावत फिल्म में वो जो हीरोइन थे रानी पद्मावती का जो रोल प्ले कर रहे थे दीपिका पादुकोण, वो वहां पे वो घूमर में एक घूमर डांस किए थे। देन लावनी, वो इट इज इन महाराष्ट्र। देन लौड़ी खेड़ा, इट इज इन ओडिशा। इस लौड़ी खेड़ा उसे भी आप गौड़ नाच के नाम पे ये जाना जाता है, ठीक है। चांगलो, इट इज इन नागालैंड। ओके, फॉर आप मैं ये जो 15 क्वेश्चन के माध्यम में ट्रेडिशनल मीडिया का इंडिया में जो फोक मीडियाज है, वो जो डाइवर्सिफाइड फोक कल्चर है इंडिया का, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश की हूँ, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होगा। देन आप इसे जो सारे स्लाइड्स है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बारे में भी आप थोड़ा 1, 2 बार 3 बार और जितने बार हो सके वो अगर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा। ये सारे के सारे आपके डिफरेंट जो जनरल स्टडीज है उसमें आपका हेल्प होंगे। और आपको अगर ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर आपको ये पसंद अगर आप ये पसंद करते हो ये वीडियो को, देन आप उसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका जो वैल्यूएबल कमेंट्स है वो मुझे दीजिए। और कुछ अगर चाहिए आपको तो कमेंट के थ्रू आप लिख सकते हैं। फॉर टुडे द सेशन इज ओवर। ओके, देन वॉच अगेन। थैंक यू, बाय बाय।